Good morning, students of class 5. As I told you yesterday that we are going to start the 7th lesson of your English literature book. This is the boat races around the world. I have already sent the pictures of the pages of this lesson. I think you must have read it, and I also instructed you to find out the words whose meaning you don't know in Hindi. So you have picked up those words or not, I don't know. But I am sending here with the meaning of some difficult word whose meaning you might have not known. So please note down these words in your fair copy and try to remember them by heart. So if you have book, open it at page number 75, and some of you have not bought the book yet, so I am going to display the pages of this lesson on the screen, but you have to watch the video carefully and try to understand each and every line carefully. Okay, so this is the hello students, this is the lesson which has been displayed on your screen. Boat races around the world. This is the 7th lesson. Are you looking? Some pictures on the page. The first, second, third, A, B, C and D, and this side the activities. The first one is known as rowing boats. That is the third one. Let's answer the third one. Rowing boats. The first picture is of rowing boats. Okay, and the second picture is the second picture is motorboat. First one. The second is motorboat, and third one is houseboat. The fourth one, and the C number. C is houseboat. Okay, and D, I have already told you, sailing boats. Means A will be tallied with 3 number. A 3 number, B 1 number, C 4 number, D 2 number. Okay, now let's start the lesson. You can look here. This is the lesson. Veena and Rajesh had recently been to Kerala to spend Onam with their auntie and uncle. There they had seen the amazing Ballam Kalli boat race. Their friends Elias and Sam wanted to know all about it. कहता है बीना और राजेश हाल में ही केरला गए हैं अपने चाचा चाची के साथ ओणम का त्यौहार मनाने के लिए। वहाँ उन लोगों ने एक बड़ा ही आश्चर्यजनक बल्लम कल्ली नाम का नौका रेस को देखा। उनके जो दो दोस्त मित्र हैं एलाइस और साम, वो लोग इस रेस के बारे में, यानी बल्लम कल्ली जो केरला में रेस ओणम के दौरान मनाया जाता है, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द बल्लम कल्ली इज़ ऑल अबाउट स्पीड, सेड बीना। Boat races are held in Kerala during Onam, the harvest festival. The boats are called snake boats because they look like snakes with raised hoods, with a towering rear and a narrow front. कहता है बल्लम कल्ली जो नौका रेस होती हैं वो स्पीड के लिए होती है कि इसकी कितनी गति हो सकती है ना। केरला स्टेट में ओणम के दौरान ये नौकाएं रेस आयोजित की जाती है, जो कि एक फसलों की कटाई के बाद का फेस्टिवल है। इन नौका रेस को स्नेक बोट्स कहा जाता है क्योंकि इनको देखने में इसकी आकृति जो है वो एक सांप की तरह होता है, जिसका हुड जैसे सांप का ऊपर वाला भाग जो फन कहते हैं वो उठा हुआ होता है,
और विथ ए टॉवरिंग रियर, और जो पीछे वाला भाग होता है वो बहुत ऊपर उठा हुआ होता है और संकीर्ण भी होता है, पतला होता है और ऊपर उठा हुआ होता है, जैसे सांप की पूंछ होती है उसी तरह से इसकी आकृति होती है। इसी के कारण इसे स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है। These are not ordinary boats. The snake boat is usually about 100 feet long and is made of a special kind of wood. It takes a lot of patience and hard work to make a snake boat. Especially trained craftspeople work for months to make a boat ready for the races. कहता है ये जो नौकाएं होती है वो कोई साधारण नौकाएं नहीं होती हैं, है ना। स्नेक बोट आमतौर पे 100 फीट लंबा होती है और ये एक विशेष प्रकार की लकड़ियों का बना हुआ होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और धीरज की ज़रूरत होती है स्नेक बोट को बनाने के लिए। विशेष तौर पे प्रशिक्षित कारीगर जब महीनों बहुत कठिन परिश्रम करते हैं तब ये नौकाएं रेस के लिए तैयार हो पाती हैं। ठीक है। और हाउ मेनी पीपल डज इट टेक टू रो सच ए लॉन्ग बोट, आस्क्ड साम। तो साम नाम का जो बच्चा है वो उत्सुकता पूछता है कि इतनी लंबी जो नौका होती है 100 फीट की, तो उसमें कितने आदमियों की जरूरत होती है उस नौका को चलाने के लिए। At least 100 oarsmen, said Veena. Then there are 4 helpsmen and 25 singers. The singers stand in the boats and sing the Banchi Pattu, the song of oarsmen. The fast rhythm of the songs encourages the oarsmen to row the boats faster. कहता है कि इसमें कम से कम जो पतवार चलाने वाले होते हैं वो 100 की संख्या में होते हैं और 4 मल्लाह होते हैं, 25 गायक होते हैं। जो गायक होते हैं वो नाव में खड़े हो जाते हैं और उनका जो गीत होता है उसको बंची पट्टू कहा जाता है और बंची पट्टू को गाते हैं और उसके लय के साथ साथ जैसा उसका लय और आवाज़ होता है, इससे जो ये पतवार चलाने वाले जो लोग होते हैं उनको उत्साह मिलता है और वो नौका को कहीं और तेज़ी से खेते हैं यानी चलाते हैं। अब आप आइए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या कहता है इस देखिए जरा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल थ्रॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर और द लेक टू वॉच द रेसेस, सेड राजेश। The boats are colorfully decorated as we were watching a race. The boats seemed like fast moving snakes heading towards the fishing line. The rhythmic splashing of oars along with the songs and drum beats made it even more exciting. क्या कहता है कि हजारों लोग नदियों और झीलों के किनारे इन दौड़ नौका रेस को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं। राजेश ने ऐसा बताया, है ना। और इन नौकाओं को बड़े ही रंगीन तरीके से सजाया जाता है ना। जब हम लोग देख रहे होते हैं इस रेस को तो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई सांप तेज़ी से अपना फिनिशिंग लाइन, जहाँ के बिनिंग लाइन होता है ना, उस ओर बढ़ता हुआ लगता है। कोई सांप जो है, सांप सब जा रहा है तेज़ी से चलता हुआ। द रिदमिक स्प्लैश, अब जो पतवार वाले पतवार छपाक छपाक मारते हैं उसकी आप स्प्लैश करते हैं, उसकी गीत के साथ जो आवाज़ छपाक छपाक की होती है और जो ढोलक की आवाज़ होती है, इसे और इस रेस को और भी ज़्यादा रोमांचक बनाती है। What we really liked about the boat race is that it is not about winning a trophy. It is about unity and spirit of the friendship among the people of Kerala. कहता है कि what we really liked about the boat race, हम लोग को जो वास्तविक में इस बोट रेस के बारे में अच्छा लगा
वो ये नहीं था कि कोई ट्रॉफी पदक जीतने के लिए, ये वहाँ के लोगों के बीच एकता का और भाईचारा मित्रता को केरला के लोगों के बीच में बनाता है, लोगों के बीच में फैलाता है, एकता और प्रेम, ये है ना। That reminds me of another festival I was reading about, said Elias, the Dragon Boat Festival of China. More than 2000 years ago, a Chinese poet called Qu Yuan drowned in a river. The local people loved him. When they saw what had happened, they took out their boats and raced to save him. But they could not find his body. People celebrate the Dragon Boat Festival in his memory. Every summer they race boats, beat drums and eat rice dumplings. कहता है, तब एलाइस कहती है कि मुझे इस तरह का एक दूसरा त्यौहार याद आता है जो कि मैं एक बार पढ़ रही थी, और उस त्यौहार का नाम है द ड्रैगन बोट फेस्टिवल, चाइना में मनाया जाता है। कहता है ये बात क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बताती है कि आज से 2000 वर्ष पहले की बात है कि चाइना के एक लेखक थे जो कि बहुत ही लोगों के बीच में मशहूर थे, उनका नाम था क्यू यान। वो एक नदी में डूब गए थे, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन्हें बहुत चाहते थे, उनके बीच बहुत ही मशहूर थे। तब जब उन लोगों ने ये देखा तो कि ये क्या हो गया, मतलब वो कभी डूब गए, तो उन लोगों ने अपना अपना बोट निकाला और उनको बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वो लोग उसको नहीं बचा सके। उन लोगों को उसका मतलब बॉडी भी नहीं मिला, शरीर भी नहीं मिला। पीपुल सेलिब्रेट ड्रैगन फेस्टिवल इन हिज मेमोरी, और उसी समय से लोग ड्रैगन फेस्टिवल मनाते, बोट फेस्टिवल मनाते हैं उनकी यादगार में प्रत्येक समर में, है ना। दे रेस बोट्स, बीट ड्रम्स एंड ईट राइस। वे लोग क्या करते हैं इस फेस्टिवल में, वो नौका दौड़ करते हैं, ढोलक बजाते हैं और चावल का यूँ गोला बना करके खाते हैं, एंड राइस डम्पलिंग मैंने चावल का गोला। तो आज मेरे ख्याल से इतना ही रहने दीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। ओके, थैंक यू, बाय, वी विल सी इन द